मशवरा एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा वेबिनार जहां लॉकडाउन में बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों को होने वाली परेशानियों पर हमारे मनोचिकित्सा या उससे जुड़े विशेषज्ञ द्वारा लाइव परामर्श एवं सवालों का जवाब दिया जाता है। आप भी जूम एवं फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ी कोई सहायता के लिए 99111077 पर हमें संपर्क करें। Welcome to Mashwara 8.0 episode. This is a live consultation for person with intellectual and developmental disability during this coronavirus outbreak. मशवरा के इस 8वें एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान मशवरा बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए लाइव परामर्श का एक माध्यम है। I welcome all our guests and audience and participants and everyone. In the last episode, our guest and participants has shown the best interest to have Mashwara with Dr. Himanshu Das sir, and we all remember. And here we are having this special episode with Dr. Himanshu Das sir, and we bringing you a very significant topic: reaching the unreached with rehabilitation services. Sustain the momentum for ending the coronavirus and improving the quality of life of person with disabilities. हम हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आप ले स्वागत आहे, वेलकम, वेलकम in whatever the language possible we can talk, and we don't have the language barrier. So हमारे मेहमानों ने और सभी प्रतिभागियों ने डॉक्टर हिमांशु दास सर के साथ मशवरा में शामिल होने के लिए अपनी बहुत सारी रुचि दिखाई थी। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए और आज हम हाजिर हैं इस विशेष एपिसोड में एक महत्वपूर्ण विषय के साथ, जो पुनर्वास सेवाओं के साथ दूर दराज तक व्यापकता लाने का अभियान शुरू करने से संबंधित है। और ये आज का जो एपिसोड है, हो सकता है कि ये मील का पत्थर साबित हो। हम सभी कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए, दिव्यांगजनों की जीवन में गुणवत्ता सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इसके बारे में हम लोग चर्चा भी करते हैं। This Mashwara live consultation through Google Meet, Facebook Live for person with intellectual and developmental disabilities, their families and professionals during this coronavirus outbreak. Once again, I would like to make you remember that we have the sign language interpretation going on. Anybody who wish to have the sign language interpretation, you can go through that Rakhi Bhandari's window. यह मशवरा लाइव परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान गूगल मीट पर उपलब्ध है, फेसबुक के माध्यम से लाइव है, हमारे ऑलरेडी जो गूगल मीट का लाइव स्ट्रीम है उस पे है, और इसमें बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमताओं वाले दिव्यांगजन, उनके परिवार, देखभाल करने वाले पेशेवर, इवन की आउट ऑफ दिस डिसेबिलिटी सेक्टर, सो मेनी पीपल्स आर हियर। सो मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी के लिए है और हम सभी आपसे हैं, कृपया हमारे साथ जुड़े रहें। मशवरा लाइव इज फॉर ऑल, प्लीज सर्कुलेट, प्लीज ज्वाइन, प्लीज बी टुगेदर, and we had started this mashwara on 30th April. Till now we have done the 8th, this is our 8th show. I once again welcome and appreciate our guests to join this mashwara live. This episode is bringing you a very important topic: reaching the unreached with rehabilitation services. Sustain the momentum for ending the coronavirus and improving quality of life for person with disability. Our experts of today's episode are Dr. Himanshu Das. We welcome you, sir. We wish कि आपका जो हम लोगों ने इतना सारा बहुत सारा जो गुणगान है, बहुत सारा जो आपके जो नॉलेज है, वो हम लोग आज शेयर करेंगे। डॉक्टर हिमांशु दास, he is a director of National Institute for Empowerment of Person with Multiple Disabilities, Chennai. And we welcome our one more special guest, Dr. Ramesh Kumar Pandey. He is a director of Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Person with Disability, Gorakhpur, Uttar Pradesh. And this session again, every session is presided by our president, Dr. Nimesh Desai. Sir, we welcome you, Director IVAS and President of Manovikas Charitable Society. So we welcome you all in this Mashwara Live सेशन एंड एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और
मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। मशवरा का यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया है और हम पुनर्वास सेवाओं को सुदूर ग्रामीण इलाकों तक, सुदूर दूर दराज इलाकों तक कैसे फैला सकते हैं, कैसे व्यापक कर सकते हैं। कोरोना वायरस को समाप्त करना है और दिव्यांगजनों के जीवन में खुशहाली लानी है, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लानी है और हमारा निरंतर प्रयास जारी रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। पुनः स्वागत करते हैं हमारे विशेषज्ञ का, डॉक्टर हिमांशु दास, निदेशक राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, और डॉक्टर रमेश कुमार पांडे, निदेशक समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास और दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और इस सत्र की अगेन हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं डॉक्टर निमेश जी देसाई, निदेशक इभास और अध्यक्ष मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी, आप सभी का स्वागत है। एंड इफ डॉक्टर देसाई सर यू आर listening me and please you want to say something to in the inaugural things, please sir. Dr. Desai sir. Dr. Desai sir. Okay, maybe his camera is out. Dr. Desai sir. Okay. So let us start with the opening thought of this Mashwara session. And this opening thought is with Dr. Himanshu Das sir. Sir, we have very one-line opening thought we want to hear, that how to identify the unreached target group. So today's very crucial topic is, महोदय आपके पास इस क्षेत्र में गैर सरकारी, सरकारी और अन्य संस्थानों में कार्य संपादन करने का व्यापक अनुभव है। हम उस लक्ष्य समूह के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी पहचान कैसे करेंगे, उन दिव्यांगजनों के बारे में कैसे पहचान करेंगे, उनके सशक्तिकरण के अवसर कैसे ढूंढेंगे जिस पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। सर, डॉक्टर हिमांशु दास सर। नमस्कार अलोक जी, एम आई ऑडिबल? यस यस सर, यस। थैंक यू सो मच। निमेश देसाई जी, डॉक्टर निमेश देसाई साहब मेरे टीचर रह चुके हैं ऑन ए डिस्टेंस मोड ऑफ कोर्स। अलोक जी मेरे परम मित्र, मनोविकास परिवार का मैं भी हिस्सा हूँ। पुनः आप सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ और ये मौका देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये जो टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरीच्ड ग्रुप, बहुत ही एक छोटा टॉपिक दिखता है, बट इट इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीजन बीइंग, जब तक एक समाज के हर एक स्टेक होल्डर ये डिसेबिलिटी ग्रुप को नहीं समझेंगे एज पर द एक्ट और एज पर लॉ ऑफ द लैंड, तब तक हमारी आइडेंटिफिकेशन की जो मूवमेंट है ये ग्रॉसली इनकम्प्लीट रह जाएगी। Because by and large, when I meet my students, meet different professionals, I find there is a conceptual problem in understanding the concept of disability, benchmark disability, high support need disability, diagnosed disability, certified disability, and the new RPWD Act disability. एक एक लाइन में अगर कहना चाहे, किसी में थोड़ा बहुत भी जब भी कोई किसी भी प्रकार की कमी रहती है तो उनको भी इस एक्ट के अंदर कवर्ड है अंडर द डिसेबिलिटी। मुझे अगर 10-20% भी कोई डिसेबिलिटी है और मेरे साथ कोई अन्याय होता है सोशियली, स्टिल दिस एक्ट कैन प्रोटेक्ट मी, सो दैट इज डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिनको मेडिकली एसेस करके हम लोग कहते हैं कि 40% इनमें डिसेबिलिटी है, दैट टाइम वी यूज द वर्ड बेंचमार्क डिसेबिलिटी। हाई सपोर्ट नीड डिसेबिलिटी, अगेन अनदर कैटेगरी, जिस कैटेगरी को क्लासिफाई करेंगे तब जब ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स मिलकर कहेंगे कि ये इंसान अपना स्वयं देखभाल नहीं कर सकते हैं, स्वयं के डिसीजन लेने में ये कामयाब नहीं है, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है, उनको हम HSN हाई सपोर्ट नीड डिसेबिलिटी कहते हैं। देन कम्स डायग्नोस्ड डिसेबिलिटी, जिन डिसेबिलिटी को हम लोगों ने डॉक्टर के पास पहुंचाया है, मेडिकल बोर्ड के पास पहुंचाया है, जिनकी डायग्नोसिस हो चुकी है, दैट इज अनदर कैटेगरी। देन फाइनली कम्स सर्टिफाइड डिसेबिलिटी, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉर्म्स के आधार पर या स्टेट नॉर्म्स के आधार पर सर्टिफाइड हो गए हैं, सर्टिफाइड डिसेबिलिटी कहते हैं उनको। और उसमें आप देखेंगे अभी नया, बहुत सारा नया डिसेबिलिटी में इतने सारे नए डिसेबिलिटी एक्ट जुड़ गए हैं, तो नया RPWD एक्ट वाला डिसेबिलिटी ग्रुप, इन सबको अलग अलग तरीके से हमारे समाज को, सारे स्टेक होल्डर्स को समझना पड़ेगा जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। हालांकि UDID ऑनलाइन प्रोग्राम्स अभी कोविड के टाइम में भी पीपल कैन अप्लाई, सम पीपल आर अप्लाइंग स्टिल। RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की तरफ से मैसिव प्रोग्राम कोविड के पहले चल रहा था। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, गांव-गांव में एक एक बच्चे की पहचान हो रही थी RBS की तरफ से, और जिन बच्चों में थोड़ी बहुत भी कमी खामी पाई गई थी उन बच्चों को डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर
जो काफी डिस्ट्रिक्ट्स में एस्टेब्लिश हो गए हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर तक पहुंचाया जाता था। ये था प्री कोविड वाले स्टेटस। नया नया डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भी बनते जा रहा है। लेकिन कोविड के समय के आप अगर ट्रेंड देखेंगे, कोविड के समय में किस टाइप का आइडेंटिफिकेशन ट्रेंड रीचिंग द अनरीच्ड में चल रहा है, उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोविड के समय में बीपीएल की आइसोलेट, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आइसोलेटेड हो गए हैं। माइग्रेंट पॉपुलेशन, उनको हम रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो अनदर आइसोलेटेड पॉपुलेशन इज द माइग्रेंट पॉपुलेशन। देन देयर कम्स ए फ्लोटिंग पॉपुलेशन, जो इधर उधर से मान लीजिए आसाम से दिल्ली आए हैं काम करने के लिए, फिर दिल्ली से पुणे चले गए, इस टाइप के काम करने वाले पॉपुलेशन को हम फ्लोटिंग पॉपुलेशन कहते हैं। वो भी आइसोलेशन के अंदर है कोविड के समय में। और जो लोगों के पास आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन वगैरह के साथ जो जुड़े हुए नहीं है, उस वक्त वो भी मुझे लगता है कोविड के ये इंक्लूसिव जो ट्रेंड चल रही है रीचिंग द अनरीच्ड, उसमें वो भी आइसोलेशन के तहत हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप सिटीज में देखेंगे, हम लोग इंक्लूजन देख रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप का, जो अनरीच ग्रुप है उसको हम रीच कर पा रहे हैं इन द सिटीज, इन द अर्बन एरियाज। वो है, एक है आपका नेट सर्फिंग पॉपुलेशन, जो लोग इंटरनेट बहुत ज्यादा सर्फ करते हैं, नेट सर्फिंग पॉपुलेशन ज्यादा जुड़ गए हैं ये कोविड के टाइम में, बिकॉज शायद उनको ज्यादा समय मिला है घर में बैठ के नेट सर्फिंग करने का, और हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ पा रहे हैं। हमारे जितने भी डिसेबिलिटी सेक्टर के इंटरनेट वगैरह है, आपकी यूट्यूब्स हैं या वेबसाइट वगैरह है, उनके सर्फिंग पॉपुलेशन बहुत बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया कनेक्टेड पॉपुलेशन, एक और ग्रुप इंक्लूजन होते जा रहे हैं दिन भर में, हम लोग देखते जा रहे हैं एवरी अदर डे, दैट इज द सोशल मीडिया कनेक्टेड पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन जो अक्सर सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में है, फेसबुक में है, वो सारे ग्रुप जो है कोविड के टाइम में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये तो होगी आपकी मोटा मोटा बात जो आइडेंटिफिकेशन एंड अनरीच ग्रुप के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बाय एंड लार्ज, वेदर इट इज कोविड, प्री कोविड और पोस्ट कोविड, आप एक देखेंगे मैसिव ग्रुप ऑफ पीपल आर येट नॉट आइडेंटिफाइड, येट नॉट डायग्नोस्ड और येट नॉट सर्टिफाइड। रीजंस व्हाटएवर, मैं चाहूंगा इसके लिए एक ही रास्ता है, वो है एक अभियान चलाने का, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाने का, एक नेशनल मूवमेंट चलाने का। अनलेस ऑल द स्टेट्स और सारे एनजीओज और ऑल द स्टेक होल्डर्स मिलके, जैसे हम लोगों ने पल्स पोलियो अभियान को सक्सेसफुल बनाया है हमारे देश में इतने सालों बाद, एक मैसिव अभियान के जरिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बना के, एक नेशनल मूवमेंट बना के, इन सारे ग्रुप को, डिसेबिलिटी ग्रुप, बेंचमार्क डिसेबिलिटी ग्रुप, हाई सपोर्ट नीड, डायग्नोस डिसेबिलिटी, इनको सबको सर्टिफिकेट देना है। न्यू एक्ट के अंदर जितने डिसेबिलिटी आए हैं उनको लाने का हमें एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। आलोक जी, आई थिंक दिस इज गुड एनफ फॉर योर इनिशियल थॉट। थैंक यू सो मच सर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, आपने बहुत ही अच्छे से आपने एक एलोबरेट किया है कि डिसेबिलिटी में ही हम अगर देखें तो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, पर्सन विथ हाई सपोर्ट नीड है, पर्सन विथ अदर काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज है, जिसको सर्टिफिकेट या जिसको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है वो भी है। सो एंड आल्सो यू हैव हाइलाइटेड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देयर आर द स्कीम्स लाइक राष्ट्रीय बाल सुरक्षा स्कीम, RBS is the राष्ट्रीय, what is the full form of RBS sir? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एंड ऑल। इसमें हमारे बहुत सारे दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग जन बहुत सारे अदर कार्यक्रम में जुड़े हैं। लेकिन अभी भी जब कोविड-19 के सिचुएशन में देखते हैं तो बहुत ही लोग हमारे सर्विसेज से दूर हैं। हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी सवाल होता है, आपका सवाल सुझाव का हम हमेशा स्वागत करते हैं। हम फेसबुक और गूगल पे भी लाइव स्ट्रीम के माध्यम से लाइव हैं। कृपया मैसेज बॉक्स में आप अपना प्रश्न और सुझाव लिखें। हमारे पास कुछ ईमेल भी प्राप्त हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि वो व्यक्ति यहाँ पर हैं। मैं आपका भी सवाल लूंगा। मैं पहले मैं जाना चाहूंगा डॉक्टर रमेश पांडे जी के पास। यू आर अ यंग एंड डायनामिक ऑफिसर नाउ and we acknowledge your hard work and efforts in providing rehabilitation services through your government provisions in CRC Gorakhpur. Please share your experience, how you are able to reach widely to the target group. हम सभी डॉक्टर रमेश पांडे जी का
एक बहुत ही युवा और डायनामिक प्रगतिशील अधिकारी हैं, जो हम जानते हैं कि इन्होंने काफी कम समय में सरकार में पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान और पुनर्वास सेवाएं अपनी कड़ी मेहनत से और प्रयास से सीआरसी गोरखपुर के द्वारा व्यापक रूप से दिव्यांगजनों तक पहुंचाया है। कृपया हम आपके अनुभव के साथ आप अपना अनुभव हमारा साझा कीजिए। डॉक्टर रमेश कुमार पांडे जी। नमस्कार, थैंक यू आलोक भैया। नमस्कार। मैं रमेश पांडे, मैं डायरेक्टर हूँ सीआरसी गोरखपुर। आज के कार्यक्रम के मेंटर, आज के कार्यक्रम के चेयरपर्सन डॉक्टर निमेश जी देसाई, आज के कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन और मेरे टीचर, मेरे गुरु हिमांशु दास जी, और जितने लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं उन सभी को नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आलोक भैया, व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विसेज टू अनरीच्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब कोविड में लॉकडाउन में जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो दिस वाज अ चैलेंज कि हम ऐसे अर्बन पॉपुलेशन जो टेक्नोलॉजी से थोड़ा अवेयर है, जिनके पास टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी है या सर्विसेज विद इन द रेंज है, उनके लिए थोड़ा सा सर्विसेज देना आसान था और उनके लिए चिंता नहीं थी। लेकिन गाँव में, रूरल एरियाज में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, जहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, जहाँ टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम है, और अर्बन पॉपुलेशन या अर्बन इंडिया से जो रूरल इंडिया बिल्कुल ही कटा हुआ है, बैकवर्ड है, और वो डिस्ट्रिक्ट्स जो नीति आयोग ने जिनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर रखा है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में सर्विसेज देना एक चैलेंज था दिव्यांग जनों को। वो चैलेंज हम लोगों ने स्वीकार किया। पहले हमारी मिनिस्ट्री ने और हमारे मिनिस्ट्री का जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वो डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कोविड के आते ही कि अलग अलग जो एजेंसीज हैं, अलग अलग जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, उनके थ्रू सर्विसेज को रूरल सेक्टर में या सर्विसेज को बेनिफिशियरीज तक कैसे पहुंचाया जाए। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट, सीआरसीज के माध्यम से, एलिम्को के माध्यम से, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से, एनएचएफडीसी के माध्यम से अलग अलग उन्होंने गाइडलाइंस दी। उसके बाद फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स ने अपने सीआरसीज के माध्यम से अलग अलग लेवल पे सर्विसेज शुरू की। हमारे सामने, चूंकि हम ईस्टर्न यूपी में डिलीवर करते हैं, ईस्टर्न यूपी देखते हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो पहला कदम तो हमने ये उठाया कि जो आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज थे, उन आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज का हमारे पास जो डेटाबेस था उनको हमने व्हाट्सएप से और फेसबुक से जोड़ा। दूसरा, ईस्टर्न यूपी के 28 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी रिक्वेस्टेड कि वो सभी जो उनके आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज हैं और उनके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, जो तहसील लेवल ऑफिसर्स हैं, उन सबको सीआरसीज के साथ जोड़े। और उसके बाद हमने ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स, ई रिसोर्सेज, फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सॉफ्ट मीडियम से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के थ्रू, हमारे सीआरसी ऑफिसर्स के थ्रू पहुंचाना शुरू किया। दूसरा, हमने अपने सारे थेरेपी के जितने भी थेरेपिस्ट हैं हमारे, जितने स्पेशल एजुकेटर्स हैं हमारे, जितने ऑफिसर्स हैं हमारे, सबके नंबर हमने फ्लैश कर दिए कि जिनको कोई समस्या है वो हमें संपर्क कर सकते थे। तो पहला तो ये हुआ कि जेनरिक काइंड ऑफ वीडियोस हमने डालना शुरू किया कि जिससे देख के लोग घर पे प्रैक्टिस कर सके, और जिनको स्पेसिफिक थेरेपी की जरूरत है, स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी की जरूरत थी, स्पेसिफिक स्पीच थेरेपी की जरूरत थी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत थी, उन सबको वो सबने हमें हमारे टेक्नीशियंस को 1-to-1 फोन किया और वीडियो कॉल के माध्यम से, रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से उन लोगों को हम लोगों ने सर्विसेज देना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे आज की डेट में मुझे लगता है कि इस 4th फेज तक आते आते हमने हजारों लोगों को सर्विसेज दे दी है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा देखने में कि हमारा जो कन्वर्जेंस और कोलैबोरेशन रहा अलग अलग एनजीओस के साथ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अलग अलग कॉलेजेस के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो हमने कोविड लॉकडाउन में देखा कि जो सर्विसेज हम डिलीवर करना चाहते हैं वो सर्विसेज हम तभी इफेक्टिवली डिलीवर कर पाएंगे जब हमारा इफेक्टिव कन्वर्जेंस होगा, इफेक्टिव कोलैबोरेशन होगा। बिना उसके हमें लास्ट व्यक्ति तक, लास्ट बेनिफिशियरी तक अपनी सर्विसेज पहुंचाना लगभग असंभव सा है। उसके अलावा हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स ने अलग अलग इनिशिएटिव ने अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए। इंटरनेशनल लेवल कन्वर्जेंस भी हुआ, नेशनल लेवल कन्वर्जेंस भी हुआ, स्टेट लेवल कन्वर्जेंस हुआ, स्टेट लेवल ऑफिसर्स के साथ कन्वर्जेंस हुआ, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कन्वर्जेंस हुआ, एनजीओ लेवल पे कन्वर्जेंस हुआ,
मेंटल हेल्थ के लिए हमारी मिनिस्ट्री ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। ये सब जो कदम हमने उठाए, इससे हम लोग बहुत व्यापक तरीके से हजारों लोगों तक पहुंचे, और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था कि हम कैसे दूर दराज फार फ्लंग एरियाज में दिव्यांगजनों तक पहुंचे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था और वो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया, और मुझे बहुत खुशी है कि लॉकडाउन के इस 4th फेज में आते आते हम लोग हजारों लोगों तक पहुंचे हैं, और बहुत मीनिंगफुल तरीके से पहुंचे हैं। जो फीडबैक्स और सब कुछ हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं, और हमें खुशी है कि हम कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हमारी मिनिस्ट्री, हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट और हमारे सीआरसी कर पा रहे हैं। आलोक भैया। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू। रमेश सर ने बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही इफेक्टिव कन्वर्जेंस की बात कही। He has explained about the effective convergence, talking with not only single department, you have to talk with the different departments, different ministries, different experts, different countries. So if we are making it the good network, we are very much successful in any critical conditions. So thank you very much, Ramesh ji. You have given the very good ideas. So I would again like to request our audience, please mute your mic. Otherwise, I have unmuted so many. One or two persons are. I'm muting him, and he unmutes himself. So then I have to take the action to take you out. So please, आप अपना माइक म्यूट कर लें। मैं मनोविकास की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं जो अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ। मनोविकास इज वर्चुअली ओपन विथ मनोविकास ई ज्ञानशाला एंड अदर टेली काउंसलिंग प्रोग्राम्स। आपको अगर मनोविकास की कोई भी सेवा तो मनोविकास.family पर विजिट कर सकते हैं। मनोविकास वस्तुतः कोविड-19 के दौरान मनोविकास ई ज्ञानशाला और अन्य टेली काउंसलिंग कार्यक्रमों के साथ खुला हुआ है। मैं विनय जी हैं, एक विनय भाटिया जी हैं, उनका आज सुबह भी एक प्रश्न आया था, पिछले भी मशवरा में प्रश्न आया था। विनय जी, अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप वही प्रश्न पूछें जो हमें लिख के भेजा था। विनय भाटिया जी। विनय भाटिया जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? या अन्य किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। विनय जी, ओके, सो maybe the people will drop their questions in their message box. In our message box, you can drop your questions and we can ask the questions later on. So we observe that the services and involvement of NGOs and civil societies in disability sector and disability movement during this COVID-19 are very good, and we can say that so many NGOs are coming forward. Dr. Himanshu Das sir, how you acknowledge their efforts? Even this Mashwara series is from the Manovikas as an NGO. COVID-19 के दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिव्यांगता के प्रबंधन के लिए गैर सरकारी संगठन काफी आगे आए हैं। सिविल सोसाइटियों का योगदान, उनकी भागीदारी का अवलोकन हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग भागीदारी कर रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु दास सर, आप उनके प्रयास को कैसे स्वीकारते हैं? यहाँ तक कि मशवरा का यह श्रृंखला भी मनोविकास से है, जो कि एक एनजीओ से है, उसी को एनजीओ ही संपादित कर रहा है। तो डॉक्टर हिमांशु दास सर। Unmute your mic, sir. Unmute your mic. Okay, thank you, भुवन जी। डेफिनेटली जो एनजीओ मूवमेंट है कोविड-19 में, उसके अंदर हमारा रेगुलर एनजीओ है, प्रोफेशनली मैनेज्ड एनजीओ भी हैं, पेरेंट मैनेज्ड एनजीओ। तो अहम भूमिका वो एक्टिविटी इलावा और किया है। बाय एंड लार्ज लोग जी, आप मुझे अगर एज ए प्रोफेशनल पूछेंगे, नॉट टू बी वेरी क्रिटिकल एनफ, बट एनजीओ की ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है कोविड में बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं रही है, डिसेबल पीपल पर्सपेक्टिव से और पेरेंटल पर्सपेक्टिव से।
इसके पीछे भी मैं अगर रीजन देखना चाहता हूं, मुझे लगता है कि एनजीओ का कैपेसिटी बिल्डिंग, एनजीओ का डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, इस तरह का इवेंट को मैनेज करने के लिए जो एनजीओ का कैपेसिटी बिल्डिंग होना था, प्रोफेशनल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होना था, एनजीओ की ट्रेनिंग होना था, ऐसा सिस्टम हमने कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, हमारे सिलेबस में भी कवर्ड नहीं थे। तो हम लोग शायद इसलिए इस डिजास्टर मैनेजमेंट में उतना अहम भूमिका शायद नहीं भी निभा पाए, क्योंकि हमने उनका कैपेसिटी बिल्डिंग इस पर्टिकुलर ऐसा समय में के लिए हमने कभी किया ही नहीं था। फिर भी जब हम एरिया वाइज देखें, कुछ कुछ एरियाज में बहुत बेहतरीन इन्वॉल्वमेंट दिखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंशन एस्पेक्ट को लेके कोविड का, अवेयरनेस एस्पेक्ट्स एक है, एक ट्रेनिंग ऑफ पेरेंट्स है, एक ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स है जैसे आप लोग आज कर रहे हैं, ऑनलाइन स्किलिंग सपोर्ट सिस्टम कुछ एनजीओ ने शुरू किया, ऑनलाइन मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट और एनजीओ कुछ लोगों ने शुरू किया। तो ये कुछ तो हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट जो एनजीओ वाले कर पा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे, काफी सारा डिसेबल्ड फ्रेंड के साथ मेरी बात हो रही है, फैमिलीज के साथ, तो द picture is much larger than what we are perceiving today as the role of NGOs. बस आप देखेंगे डिसेबिलिटी वर्सेस द रिलीफ मेजर्स, इसके ऊपर आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा अभी तक कि डिसेबल व्यक्ति लोगों के लिए आर वी एंश्योरिंग फूड, शेल्टर एंड इफेक्टिव माइग्रेशन, इसके ऊपर बातचीत ही नहीं हो रही है। अब मुझे यकीन है ये जो आप दिन भर में सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों की दुर्दशा चल रही है माइग्रेटिव पॉपुलेशन का, इन लोगों की फूड, शेल्टर और इनकी माइग्रेशन वगैरह के ऊपर हम लोगों ने सोचा नहीं है, डिसेबल लोगों का। सेकंड, नॉर्मल लोगों का जो हेल्थ चैलेंजेस है, प्रोपोर्शनेटली आप अगर डिसेबल लोगों का हेल्थ चैलेंजेस देखेंगे, दिव्यांगजनों का, वो हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा होती है। वो हेल्थ चैलेंजेस कैसे मीट करे? कोविड के टाइम में हमारे पास गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं, उसको हम घर बुलाया, डॉक्टर्स आएंगे भी नहीं घर इस समय में। तो ये हेल्थ चैलेंजेस दिव्यांगजनों का कैसे हम मीट कर रहे हैं? From a very early childhood, say I have got a Down syndrome child of 3-4 months, और उसको ये 1.5 महीने में 3 बार खांसी जुकाम हो गई, एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू गेट एनी ट्रीटमेंट। तो हेल्थ चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, इपिलेप्टिक केसेस है, देयर आर लॉट ऑफ सच चैलेंजेस। थर्ड में आ जाता है सर्वाइवल चैलेंजेस। आप अगर देखेंगे कई सारा दिव्यांगता है, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ से थैलासेमिया एंड होमोफिलिया। थैलासेमिया, होमोफिलिया ऐसे केसेस में मेडिकल नीड्स आर वेरी वेरी हाई। मुझे ब्लड चाहिए, अब रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, मुझे रेगुलर डोनर चाहिए। ये पिछला 1-1.5-2 महीने में मुझे वो डोनर कहाँ से मिला रहा है, मेरा ब्लड ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? अगर मेरा ब्लड ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो मैं क्या जिंदा भी हूँ या मर गया हूँ? तो देयर आर लॉट ऑफ सच डिसेबिलिटीज जहां इस टाइप के ब्लॉकेज में, इस टाइप का लॉकडाउन में सर्वाइवल चैलेंजेस भी आ जाता है अगर एनजीओ उनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका अलावा आप देखेंगे नॉर्मल जो पैकेजेस मिल रही है, नॉर्मल खाना कहीं मिल रहा है, कुछ पैसा कहीं मिल रहा है, इज दैट इनफ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड देयर फैमिलीज? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि उनके नीड बहुत हाई है। तो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज गवर्नमेंट जब देगी नहीं देगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। I don't want to touch upon that part. It is a central affair, it is a state affair, it's a panchayat affair. But as a NGO, our NGOs are mobilizing sufficient fund to give special economic packages to their beneficiaries. Then next important point is rehabilitation in employment. Employment खो गई है, जो छोटा मोटा रोजगार में भी था, किसी का कोई दुकान था, किसी का कोई शॉप था, किसी का कुछ इस प्रकार का छोटे मोटे नौकरी थी, या माइग्रेंट पॉपुलेशन का ही कुछ करके काम कर रहे थे, उनकी नौकरी, उनकी शॉप, उनकी दुकानें चली गई है। तो इन दिव्यांगजनों का रिहेबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एनजीओ की अहम भूमिका चाहिए हमें। इकोनॉमिक लॉस जो हुई है, इकोनॉमिक लॉस सबसे हुई है हमारे लोगों की, disabilities are not in the government job. It means they are suffering as far as economic loss is concerned. तो उसके ऊपर एनजीओ की अहम भूमिका भी आनी है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, ये जो मैंने कहा, रिलीफ रिलेटेड चैलेंजेस है, हेल्थ चैलेंजेस है, सर्वाइवल चैलेंजेस हो रही है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हो रही है, एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस हो रही है, इस सब कुछ की वजह से आप एक देखेंगे डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस एंड बिहेवियरल इश्यूज, ये सब चीजें भी हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा हो रही है, हमारे दिव्यांगजनों में हो रही है। तो इसके लिए भी एनजीओ को उभर के आगे आना पड़ेगा, हाउ वी आर मीटिंग दीज नीड्स। तो ओवरऑल आप अगर देखेंगे, इट इज टाइम कि इस बार तो कोविड मान लीजिए खुल गया या आगे वी आर एक्सपेक्टिंग सिचुएशन शुड इंप्रूव, बट इट इज हाई टाइम हम एनजीओ की कैपेसिटी बिल्डिंग करें और एनजीओ की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ध्यान दे कि देयर आर लॉट मोर नीड्स टू बी डन, कुछ गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डू अलोन, और सब लोगों को मिलके दिव्यांगजनों का ये रिलीफ, हेल्थ चैलेंजेस, सर्वाइवल चैलेंजेस
स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज एंड रिहेबिलिटेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड देयर इकोनॉमिक लॉस, ये सब के ऊपर ध्यान दिया होगा। उसका अलावा उनका साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा, बिकॉज मेंटल इलनेस इज ऑल्सो ए डिसेबिलिटी एंड अन्य दिव्यांगता में मेंटल इलनेस होने की संभावना आम जनता के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मेंटल इलनेस कैन बी फाउंड अप टू 50% ऑफ द adults because of all such abrupt situations that we create in their life. तो अलोक जी, मैं चाहूंगा ये मशवरा के जरिए हम इस मैसेज सबको पहुंचा पाए कि एनजीओ की भूमिका जो है बहुत ज्यादा है जो हम कर रहे हैं इससे, और कई सारा एनजीओ अपने अपने कॉम्पिटेंसी के हिसाब से, अपने अपने कैपेसिटी, अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से बाकी सारे एरियाज में भी हाथ पैर हमें मारने पड़ेंगे। सिमिलरली हमारे प्रोफेशनल्स भी जो हैं वो भी आज की डेट में दे हैव टू वर्क आल्सो लाइक मिशनरीज। इस तरीके से घर में बैठ के 2-4 अवेयरनेस प्रोग्राम, 2-4 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या नॉलेज गेन करने से नहीं होगा। दिव्यांगजनों के ये जो रिलीफ है, हेल्थ सर्वाइवल चैलेंजेस वगैरह है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, तो हाथ बताने के लिए हमारे सारे प्रोफेशनल्स को भी आगे आना पड़ेगा। थैंक यू अलोक जी। Great sir, thank you sir, thank you. You have just given the open perspective. It's not a wider perspective, it's a wider perspective. It is not something कि हम छोटे जगह पे करें। और आपने जो एक अंत में जो एक बात कही है वो बहुत ही रिमार्केबल है कि हम एज ए प्रोफेशनल, एज एन एनजीओ, एज एन सिविल सोसाइटी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हमें जरूरी है कि हमारे अपने उसका ताला खोलना। रामपाल सिंह जी, आपने एक क्वेश्चन पूछा है सर, स्पेशल एजुकेटर जितने भी हाँ जी, बोलिए क्या बोल रहे हैं सर? मेरे पास एक पेशेंट है सर जिसका बच्चा जो है बहुत अच्छे से चित्र निकालता है सर, वो पेंटिंग करता है। और वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है सर, आइडिया है। तो उसके मदद चाहते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म मिले। मैंने बहुत कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, मैं विजुअल इम्पेयर्ड फील्ड से हूँ, तो सर मुझे ऐसे कोई आइडिया मिल रही है सर, आपको उसके लिए थोड़ा बता। रमेश पांडे जी सर, कुछ इस पे विचार डालेंगे? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। सर मेरे यहाँ पर एक सीआरसी में बच्चा आता है सर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है। वो बहुत अच्छे से चित्र निकालता है सर, पेंटिंग बहुत अच्छे करता है, हाई पेंटिंग करता है। तो उसके मदद चाहते हैं कि उसको कोई प्लेटफॉर्म मिले। थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से मैं उसको प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहा हूँ सर, तो मुझे बता सकते हैं कि उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ओके, ही इज अ विजुअल इंपेयर्ड। उनको कौन सी दिव्यांगता है उनको? सर वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है सर, थोड़ा सा। हाँ जी सर, लेकिन चित्र बहुत अच्छे निकलता है सर, बहुत ही। ओके, द पर्सन ही इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ही इज अ गुड पेंटर and he wants the question, the person asks कि what are the platforms where he can show his talent? रमेश पांडे जी, उसमें 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वो बच्चा कहाँ है और उसके आसपास वो किस इंस्टीट्यूशन से, किसी इंस्टीट्यूशन से लिंक्ड है या नहीं है। अगर वो किसी स्कूल से, किसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर से या किसी शेल्टर होम से या किसी भी फॉर्मल सेटअप से अगर जुड़ा हुआ है, तो उनके माध्यम से वो नियरेस्ट डीडीआरसीज को, नियरेस्ट सीआरसीज को वो अप्रोच कर सकते हैं, और या नियरेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर सकते हैं, जिससे इनकी जो पेंटिंग कंपटीशन, अलग अलग लेवल पे पेंटिंग कंपटीशन होते रहते हैं हमारे सेटअप्स में, तो उसमें उनको इंक्लूड किया जा सकता है। दूसरा, बहुत सारे फॉर्मल कॉम्पिटिशन्स होते हैं फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसमें अलग अलग लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, अगर वो हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम उनको उसकी इंफॉर्मेशन टाइम पे देते रहेंगे। दूसरा, हमारे ट्रेनर्स जो हैं, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, वो अगर उन तक रीच, हमारे तक उनकी रीच बनेगी तो हम उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देके उस पर्टिकुलर स्किल में एम्पावर कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। या उनके नियरेस्ट अगर कोई एनजीओ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई नियरेस्ट एनजीओ है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए काम करती है, वो उनसे जुड़ के वो हमसे जुड़ सकते हैं। और एनजीओ की कैपेसिटी बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हम कोविड में कर रहे हैं, कि अगर कोई पेरेंट एसोसिएशन है, अगर कोई डिसेबल्ड पीपल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई लोकल लेवल एनजीओ है, तो उनके जो ट्रेनर्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो टेक्निकल स्टाफ हैं, उनकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं।
ऑनलाइन माध्यम से। तो इस कोविड में हम उनको भी कैपेसिटी बिल्डिंग करके और उनको वो रास्ता बता सकते हैं कि वो उनके साथ उस पेंटिंग विधा में उनको कैसे ट्रेन करें और कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये Very good. बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल लेवल पे उनको कांटेक्ट करना होगा, फिर हमसे या जो भी नियरेस्ट गवर्नमेंट सेंटर हैं या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे कांटेक्ट करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं। Very good, great. So thank you. I can hear that we all can monitor and do social audit of any activity. हम सभी का दायित्व है कि हम ऐसे किसी भी सामान्य गतिविधि, योजना या दिव्यांग जन को शामिल होने वाले योजनाओं, कार्यक्रम में शामिल होएं और सोशल ऑडिट करें। हमें निगरानी रखनी है कि कौन सी संस्था कौन सा काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। So I'm going into that next further topic. We can monitor, we can do social audit or of any activity and general schemes, programs involving the person with disabilities. Even the Rights of Person with Disability Act, Section 48, has the provision of social audit. So Ramesh Pandey ji, Dr. Ramesh Pandey ji, what is your suggestion? How we can, we all can reach to this unreached using this social audit kind of things? हम सभी का दायित्व है, हम सभी ऐसी गतिविधियों में, योजनाओं में जो दिव्यांगजन से संबंधित है उसमें भाग ले सकते हैं, उनका सामाजिक ऑडिट कर सकते हैं, उन पे निगरानी रख सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास जो आरपीडी एक्ट है उसके सेक्शन 48 में सोशल ऑडिट का भी प्रावधान है। सो डॉक्टर रमेश पांडे जी, आपके सुझाव में हम व्यापक रूप से इन दिव्यांग जन तक कैसे पहुंच सकते हैं बाय यूजिंग सम इवन द राइट्स आल्सो? प्लीज सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सेक्शन 48 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात कर रहे हैं भैया। वो स्टेट गवर्नमेंट या एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को ये अथॉरिटी है हमारे एक्ट के हिसाब से कि वो प्रोविजंस की, एक्ट्स की, पॉलिसीज की, जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी स्कीम्स हैं उसकी ऑडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि कैसे पहुंचा जाए या कैसे निगरानी की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोविड ने एक चीज हमें दर्शाया है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो स्मार्टफोन है, जो हमारे सबके हाथों में अभी है, इसने रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया का गैप बहुत कम कर दिया है। और इसके बाद भी जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, या जैसा अभी डॉक्टर हिमांशु दास जी ने कहा कि माइग्रेंट्स जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं इस कोविड की वजह से, उन तक कैसे पहुंचा जाए, वो उसकी पॉसिबिलिटी जो हमने देखी कि जितना माइक्रो लेवल पे, जितना ग्रास रूट लेवल पे जाके आप कोलैबोरेशन करेंगे, क्योंकि सर्विसेज डिलीवर कर पाना किसी नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, हमारे मंत्रालय के लिए, सीआरसीज के लिए, डीडीआरसीज के लिए इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि हम सब तक पहुंच जाएं। तो जब तक इफेक्टिव कन्वर्जेंस इफेक्टिव लेवल पे, अलग अलग लेवल पे नहीं होगा, बिना कन्वर्जेंस के हमारी रीच नहीं होगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का। आलोक जी, जैसा आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं मशवरा, इसका जो पेरेंट एसोसिएशंस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं, जो डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डीपीओज हैं, उनके थ्रू कन्वर्जेंस करके हम अलग अलग लेवल तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा, ये माइग्रेंट्स जो हैं, इन तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी हिमांशु जी ने कहा कि मेंटल हेल्थ इशू एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इन माइग्रेंट्स में या घर पे रह रहे पर्सन विद डिसेबिलिटीज में हो रही है। एक तो सस्टेनेबल थेरेपी की जरूरत है जो घर पे रह के उनको नहीं मिल पा रही है। हम लोग हालांकि उनको ऑनलाइन प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार बहुत सारी टेक्निकल थेरेपीज, बहुत सारी टेक्निकल चीजें जो हम उनको तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उसके लिए एनजीओज के साथ कोलैबोरेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इफेक्टिव कन्वर्जेंस होना है, ग्रास रूट लेवल पे कन्वर्जेंस होना है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, और ये जो माइग्रेंट्स हैं उनका डेटा एप्रोप्रिएट सर्विस डिलीवरी एजेंसी तक, सर्विस डिलीवरी करने वाली एजेंसी तक पहुंचाना है, और हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन तक पहुंचना है। साथ ही साथ अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि रिहैब प्रोफेशनल का रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर रिहैब प्रोफेशनल को एक कैरियर बनना है, इंफॉर्मेशन का कैरियर बनना है, सर्विस एप्रोप्रिएट सर्विस डिलीवरी का कैरियर बनना है। तो जो जहाँ पे है वो आसपास अपनी कम्युनिटी में अगर ये कर ले कि हमारे पास आसपास अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उस तक हम उसको जो जरूरी है वो एप्रोप्रिएट सर्विसेज कैसे पहुंचा सकें या सर्विसेज से लिंक कर सकें। सो शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, लिंकेजेस विद द एप्रोप्रिएट एजेंसी एंड स्कीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल, पेरेंट एसोसिएशन, डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशंस, साथ ही साथ जो हमारी स्कीम्स है
उसके बारे में अवेयरनेस और नेशनल इंस्टीट्यूट सीआरसी के जो एफर्ट्स हैं उनके साथ लगातार जुड़े रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कहते कि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है। कल लखनऊ के दिव्यांग उत्तर प्रदेश के दिव्यांग कल्याण मंत्री के साथ हम लोगों की एक मीटिंग थी। सो बहुत जल्दी ही हम लोग अर्ली इंटरवेंशन सेंटर लेके गोरखपुर में आ रहे हैं। Great. And I would like to request Ramesh ji, please give your something in 2 or 3 lines in English, what you have spoke now. Sir, I would also like to ask a question, please, if you allow me. Very important. What Sir, please. I was trying to say, Please. What I was trying to say, this services to migrants, how this smartphone has reduced the gap between the rural India and urban India. We all are having smartphones, but those migrants and those who do not use this smartphone are the main sufferers. So we as a CRC or our National Institute and our DEPWD, we are continuously trying to strive the services to the needy populates, to the last person of the community. It is not at all possible with a bunch of manpower to reach to the persons with disabilities in rural sectors or the backward sections. So what we are doing, we are collaborating extensively with parent associations, with disabled people organizations, with NGOs, with civil society organizations, and even district authorities. And we are collecting the data of actual beneficiaries. We are reaching them through webinars, we are reaching them through social media, we are reaching them through WhatsApp, Facebook. And now, our message is that every rehab professional has to become a career, and they have to spread the knowledge, they have to take the challenge, and they have to link a person with disability who is residing near them with the appropriate scheme, with the appropriate agency, and they have to work as a local level, community level service provider, so that if proper linkages, if sharing would be there, then our services will reach to the last person, to the most needy populations. So these are the basic things we need to do to reach the unreached population. Great. Thank you. So somebody was asking the question. Please. Yes, sir. Sir, you identify yourself first. Sir, I'm Mrs. Sharmishta Basu. I'm the principal of Asha School, Lucknow. Yes. It's an army school, and it's a special school which has all disability children. Now, sir, I've been attending various webinars. In fact, Aapka Mashwara, I've been attending all, and I think you already know that. Great, thank you. And it's an excellent venture that you've done. But, sir, what I find is all throughout we are talking about moving forward in this COVID lockdown, in the new normal that has happened. We have to bring everything through e-platform. That is what we are talking everywhere. And sir, being a school and all NGOs, so you must be aware that Ministry of Social Justice and Empowerment, the funds that the NGOs get for every purposes, computer teacher is not an acceptable entity by MOSJ. I think you know that. Yes. So, sir, somewhere, don't you think we require a paradigm shift in the way we think that special education really needs to reinvent itself? Great. The same question we have from the Dr. Hemant Keswal ji. Do we have any working model to reach out the person with disability during all these conditions? We need to have, I think, Himanshu Das sir, I would like to request you to answer these things. How to think about this model of working model and rehabilitation model now after this COVID-19 situation? There are so many things has changed. Himanshu sir, could you please highlight something on this? Himanshu Das sir. Yeah. Himanshu Das sir? नमस्कार अलग जी. Namaskar. टेली रिहैब प्रोग्राम, वीडियो प्रोग्राम, रेडियो रिहैब प्रोग्राम और ऑनलाइन रिहैब प्रोग्राम, ये सारे चीजें जो है पायलटिंग में है विथ मेनी ऑफ द NGOs, मेनी ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट. आई होप, अब उसको हमने कभी सीरियसली उतना लिया नहीं था. हेल्थ में तमिलनाडु में हमने एक्सपेरिमेंट किया था इन द हेल्थ मॉड्यूल.
टेली हेल्थ मेडिसिन दैट इमर्ज एज ए मैसिव सक्सेस। उसके साथ हम लोगों ने रिहैबिलिटेशन को भी, टेली रिहैब को भी जोड़ने की कोशिश की है। अभी मेनी नेशनल इंस्टीट्यूट, मेनी INGOs इस काम में अभी अभी लगे हैं और इसको हमने कभी सीरियसली लिया नहीं था, थिंकिंग दैट इंडिया में शायद इस टाइप के चीजें, स्मार्टफोन, ऑनलाइन, ये सब चीजें शायद कामयाब नहीं होंगे। बट विद दिस कोविड लॉकडाउन में जो भी नया चैलेंज आया है, विद द न्यू लाइफ दैट वी आर गोइंग टू हैव पोस्ट कोविड, आई थिंक वो जितने भी हमारे पायलट प्रोजेक्ट थे वो इम्प्लीमेंट होंगे और इसको अलग प्लेटफॉर्म में लिया जाएगा। एंड ऑल दिस नेशनल इंस्टीट्यूट, CRCs एंड INGOs एंड बिग NGOs will come up with tele rehab program. Yeah, great. So tele rehab program is very important, and then going on to into the online things and internet based programs is very important. Pradeep Jaiswal ji, you have one question, so you can ask. This is the final and last question, Pradeep Jaiswal ji. सर मेरा क्वेश्चन है रमेश पांडे सर से जी कि मेरे भैया जो है उनका एक लड़का है जो आज उसका उम्र होगा करीब 12-13 साल होगा। तो लगभग 7 साल की उम्र में उसको पता चला अब कि उसको DMD, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी मतलब ये है। तो उसके लिए डॉक्टर को यहाँ लखनऊ PGI में भी दिखाया गया, गोरखपुर दिखाया गया, इसके बाद ये हम लोग मुंबई में भी दिखाए। फिर डॉक्टर बोला कि इसके लिए कुछ नहीं है, बस आप पतंजलि में का दवा करवाइए। तो हमने पतंजलि में इसके लिए दवा चलवाया। तो वहाँ पर ये मसाज जो एक होता है, एक है वो पंचाक्रम होता है। तो पंचाक्रम ही वो लोग करने के लिए बोले कि यही है कि इसका एक उपाय है। क्या इसके लिए अलग से कोई थेरेपी घर पे करने के लिए या कोई और भी कोई इलाज? हम सिद्धार्थ नगर रहने वाले हैं। सिद्धार्थ नगर कहाँ पर है ये, कौन से स्टेट में, कहाँ? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर के 10 किलोमीटर। यस, तब तो आपको एकदम। हाँ रमेश सर, प्लीज सॉल्व हिज इशू। प्लीज, क्योंकि बहुत जरूरी है ना। जयसवाल जी, मैं हालांकि हमारी सर्विसेज ओपन है, हमारी OPD सर्विसेज CRC गोरखपुर की ओपन है और ऑनलाइन सर्विसेज भी ओपन है। लेकिन चूंकि कोई बसेस वगैरह चल नहीं रही हैं तो आप सिद्धार्थ नगर से गोरखपुर जाने में आपको कठिनाई होगी लॉकडाउन में। मैं आपको बता रहा हूं और सभी को बता रहा हूं, आप CRC GKP ऑफिशियल हमारा फेसबुक पेज है, CRC GKP ऑफिशियल, आप उस पर चले जाएं। उस पे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर है। नहीं सर, हम आ सकते हैं कि हमारे यहाँ से गोरखपुर 60 किलोमीटर। अगर आप आ सकते हैं तो गोरखपुर शहर में, मेन शहर में गोलघर है, वहाँ पे सीतापुर आई हॉस्पिटल बहुत फेमस है। सीतापुर आई हॉस्पिटल में ही CRC संचालित हो रही है। आप CRC आ सकते हैं, बहुत अच्छा है। हमारी सर्विसेज ओपन है। सैटरडे संडे CRC बंद रहती है, बाकी आप वीकडेज में कभी भी आ सकते हैं अगर गवर्नमेंट हॉलीडेज ना हुई तो। ग्रेट। सो थैंक यू सर। एक बार एड्रेस फिर से बोल दीजिए। आपको मैं एड्रेस इसी चैट बॉक्स में रमेश जी को बोलूंगा कि वो मैं लिख देता हूं चैट में, आपको मिल जाएगा। ओके सर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड वी हैव शेयर्ड लिंक। हाँ जी, हेलो। हाँ, क्वेश्चन है। Okay, Binay Bhatia ji, I'll take your question. This is the last, and I'll request everyone, please, you write your questions in the message box. So from there we can take it, and we will definitely reply you later. Okay, Binay ji, हाँ, आप शॉर्टकट में पूछिए सर। हाँ, नमस्कार सर। हाँ, हिमांशु दास जी को नमस्कार, आपको ही नमस्कार और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे संसार के अन्य प्रगतिशील देशों में डिसेबिलिटी पर फोकस होता है और वो बिना किसी क्राइटेरिया के उनको सुविधाएं जो है उपलब्ध कराते हैं, कभी हमारे देश में हर चीज पर जो है क्राइटेरिया यूज होता है। आरक्षण, गरीबी, अमीरी देखी जाती है और उस आधार पर निर्भर करता है कि आप इस लायक हो या नहीं हो। आज तक आजादी के 73 साल बाद भी हम कहाँ हैं, ये सोच का बड़ा विषय है। पेरेंट्स तो इतने दुखी होते ही हैं, साथ में प्रोफेशनल भी बिना नौकरी के बहुत धक्के खा रहे हैं। आज हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तक नहीं बनवा सकते, तो हम 73 साल की आजादी के बाद क्या इस चीज को सोच सकते हैं कि हमारे डिसेबल्ड लोगों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत भारी काम हो रहा है। बहुत सारी NGO हो गई, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए, लेकिन आज तक 73 साल की आजादी के बाद भी डिसेबिलिटी वालों को आज तक कोई खोज नहीं मिला, उनके लिए कोई डिसेबिलिटी बोर्ड नहीं बना। क्या आप लोग इन चीजों से संतुष्ट हैं? हमारे जो हिमांशु दास जी हैं, मैं उनसे कई बार मिला भी हूँ,
बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छी तरह और ऊंचे पद पर भी हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आज हम किस मोड़ पे पेरेंट्स बैठे हैं, आजादी के 73 साल बाद भी हमारे पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। हिमांशु सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप ही पर है। गवर्नमेंट की एक संस्था का मैं निदेशक हूं, तो मेरी तरफ से ये जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब देखेंगे एक चीज तो हम लोगों को मानना पड़ेगा, इसमें तीन तरफ का थोड़ी सी परेशानी मुझे दिखती है। पहला जो दिखती है वो ये है कि हमारे यहाँ जो डिसेबल पीपल्स मूवमेंट है, डिसेबल पेरेंट्स मूवमेंट है, वो काफी हद तक मुझे लगता है कि इनअप्रोप्रिएट है, कमजोर है। कारण चाहे कोई भी हो, हम लोगों ने मिलके डिसेबल पीपल मूवमेंट और डिसेबल पेरेंट मूवमेंट ठीक से देश में चला नहीं पाए। हालांकि आप अगर देखेंगे 80% ऑफ द स्पेशल स्कूल्स जो ठीक से चल रहे हैं, दे आर बीइंग रन बाय पेरेंट्स। उसके बावजूद भी आप देखेंगे उन सब स्कूलों में भी देखेंगे दे हैव फेल्ड टू मोबिलाइज दिस मूवमेंट। कई सारे पेरेंट एसोसिएशन में जानता हूँ वो इस चीज को मोबिलाइज नहीं कर पा रहा। तो पहला तो ये होगा कि हमें जागरण लाना पड़ेगा, डिसेबल पीपल मूवमेंट और डिसेबल पीपल पेरेंट मूवमेंट एक जागरण करना पड़ेगा। डिस्कशन मैंने कहा है एक बात कि ये जो सर्टिफिकेशन है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, हाई डिसेबिलिटी के लिए, डायग्नोसिस के लिए, इसके लिए जो मैंने पहले भी कहा था, एक अभियान, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, एक नेशनल मूवमेंट चलाने की आवश्यकता है, उसके ऊपर हमें ध्यान देनी पड़ेगी। और तीसरा, एक कॉन्फ्यूजन जो अभी भी समाज में फैला हुआ है, हालांकि गवर्नमेंट को ये चीज पता है, लेकिन समाज में ये चीज फैला हुआ है, क्योंकि ये चीज जब मैं प्रोफेशनल्स को पूछता हूँ, एनजीओ से पूछता हूँ, लोगों को पूछता हूँ, तो डिसेबिलिटी प्राइमरीली किसका काम है? दिव्यांगजनों का सेवा या सर्विसेज देना प्राइमरीली कौन सा गवर्नमेंट का काम होता है? तो ये हमारी काफी लोगों को पता ही नहीं है कि ये बेसिकली एक स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। तो लोकल गवर्नमेंट की जो एक्सपीरियंस है, लोकल गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत हद तक डिपेंड करते हैं दिव्यांगजनों को कहाँ तक ले जाएंगे। मैं साउथ में काम करता हूँ, दक्षिण भारत में पिछले मैं 5 साल में काम कर रहा हूँ। अगर आप केरल के स्थिति, तमिलनाडु की स्थिति और उसके साथ अगर कई अन्य राज्य का आप स्थिति को तुलना करेंगे तो आपको लगेगा it's a huge difference. Kerala is doing very well. Tamil Nadu is infrastructurally doing very very well. लेकिन हम जब वही चीजें हम दूसरे कई स्टेट में देखते हैं तो हमें बहुत कमजोर मिलता है। लेकिन कई सारा छोटे मोटे एरियाज में कई बार बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट मिलता है। जैसे एडवोकेसी एंड लीगल राइट के मामले में बिहार है, लास्ट 3-4 इयर्स में बिहार बहुत अच्छा काम कर रहा है एडवोकेसी एंड लीगल राइट्स। सिमिलरली कई और स्टेट है, जैसे अंडमान निकोबार, छोटा सा आइलैंड है, दे आर ट्राइंग टू डू वेरी वेल इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो मुझे लगता है ये स्टेट का रोल को समझना, हमारे सारे एनजीओज को अपना स्ट्रेंथन करना कैपेसिटी, क्योंकि इंटरनेशनल फंडिंग बहुत है, कॉर्पोरेट फंडिंग बहुत है, हमारे एनजीओ छोटे छोटे हैं, गरीब एनजीओज हैं, पेरेंट एसोसिएशन गरीब है, डिसेबल पीपल एसोसिएशन गरीब है, वो फंड मोबिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट से कई बार फंड ले नहीं पाते हैं क्योंकि उनको टेक्निक्स प्रोसीजर्स ठीक से पता नहीं है। गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन में कई बार लूप होल्स है, क्योंकि हमारे एडवोकेसी फोरम जितने भी हैं वो कमजोर हैं, हमारे कमिश्नर्स के साथ एनजीओज की लाइजनिंग कमजोर है। तो कई सारा चीज, इट्स ए मिक्स अप कॉम्प्लेक्स इश्यूज, जिसके वजह से कई सारा दिव्यांगजनों को सफर करना पड़ रहा है। हालांकि उसके बावजूद भी आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में एक अलग टाइप का मूवमेंट आया है। इसको पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ऊपर तो एट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। इसका अलावा आप देखेंगे कई सारा सीआरसीज, कई सारा नेशनल इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर और नई तरीके से अभी डीडीआरसीज की रिवाइवल की बात चल रही है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की रिवाइवल की बात चल रही है। तो ये डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स अगर 700 कंट्री में हो जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रोल जो है वो काफी प्रमुख हो जाएगा। तो मीनवाइल मैं चाहूंगा जब तक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करे, तब तक इट इज हाई टाइम कि पेरेंट्स, डिसेबल पीपल एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी हम लोग थोड़ा सा अपना कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग के ऊपर काम करें। थैंक यू अलोक जी। हेलो, दिल्ली के बारे में आपका क्या विचार है सर? दिल्ली में थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दिल्ली में आप अगर जैसे सर्व शिक्षा अभियान की आप देखेंगे, दिव्यांगजनों का रेगुलर शिक्षा में आप पार्टिसिपेशन देखेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन वाला जो कंपोनेंट है उसमें दिल्ली पूरे देश में नंबर 1 में है। और यूडीआईडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन में देखेंगे दिल्ली का हाल बहुत बुरा है।
तो दिल्ली का मामला जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग पर्सन विद डिसेबिलिटी देखेंगे दिल्ली में सबसे ज्यादा है। नंबर ऑफ पब्लिक स्कूल्स चार्जिंग एक्सटॉर्बिटेंट फीस, बहुत ज्यादा फीस लेके जो पब्लिक स्कूल्स दिव्यांगजनों की सेवा कर रहे हैं वो दिल्ली में बहुत ज्यादा है। तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स फिगर, बट बाय एंड लार्ज मैंने देखा दिल्ली में जो अमीर लोग हैं उनके लिए सब कुछ उपलब्ध है दिल्ली में। यस यस, जो बिल्कुल। मिडिल क्लास या अपर क्लास के हैं उनको थेरेपिस्ट चाहिए, उनको स्कूल चाहिए, उनको इंक्लूसिव स्कूल चाहिए, उनको स्पेशल स्कूल चाहिए, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस चाहिए, जो भी चाहिए उस क्लास के लिए सब कुछ अवेलेबल है। जैसे ही आप लोअर क्लास में आ जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हैं, ऐसे आई थिंक दिल्ली के एनजीओज भी इनकॉम्पिटेंट है बाय एंड लार्ज, उनको सर्विस नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि काफी सारा एनजीओ स्पेशल स्कूल पैसा चार्ज करते हैं। कई सारा एनजीओ कैपेसिटी बिल्डिंग उस तरह से नहीं कर पा रहे कि वो सीबीआर में काम कर पाए, स्लम में काम कर पाए, स्किलिंग के ऊपर काम कर पाए या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम कर पाए। तो मैसिव वर्क्स नीड्स टू बी डन, लेकिन सबके पीछे ये है कि एनजीओ की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, फंड राइजिंग हो, गवर्नमेंट के साथ कन्वर्जेंस हो, तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें बहुत बड़ी चीज नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। थैंक यू जी। मैं आपको बताऊं दिल्ली में जो पोजीशन, आपको मैं 22 साल के 23 साल का तजुर्बा बताता हूं आपको अपना, कि दिल्ली में आज भी 23 साल मुझे हो गए, लेकिन दिल्ली में आज भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड, इन चीजों पर कोई भी काम नहीं हो रहा। और इतनी परेशानी होती है कि 8-8, 10-10 महीने बाद एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होता है, और यूडीआईडी कार्ड का तो पता ही नहीं है आज तक, 3 साल के बाद भी। वही मैंने बताया कि दिल्ली आपका यूडीआईडी में बिल्कुल नीचे है फंक्शन। हाँ जी आलोक जी, आगे बढ़ेंगे। तो दिल्ली की जो सरकार है वो तो आज पेंशन भी 3-3 महीने बाद आती है पहले, और मतलब ना डे केयर सेंटर है, ना वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, कुछ भी नहीं है सर दिल्ली में। आप उसके बारे में क्या क्या कर सकते हैं हमारे लिए? सर मेरा सलाह यही होगा कि डिसेबल पीपल, मैं पहले भी बताया, डिसेबल पीपल एसोसिएशन, पेरेंट एसोसिएशन, एनजीओज, इनकी कॉन्वर्जेंस दिल्ली में नहीं है। हम सारे एनजीओज एक दूसरे के दुश्मन जैसा चल रहे हैं। तो पहला ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सारे एनजीओज एक प्लेटफॉर्म में आना होगा। एसोसिएशन, स्पेशल स्कूल, हमारे प्रोफेशनल एसोसिएशन। विनय भाटिया जी, I'll take your question. I'll go to the हिमांशु सर। हमारे पास एक अंडमान निकोबार से there is a question, how we can rely on the technology during this hardship of time. Around 575 islands in Andaman Nicobar, so they have some problem in living in Andaman, and then अभी इस दौरान तो जहां पर इंटरनेट का प्रॉब्लम है, सारा चीज है, what you suggest them? देखिए अंडमान का हालत जो है कभी हम लोगों ने सीरियसली सोचा ही नहीं था। आज से 4-5 साल पहले ही हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अंडमान के ऊपर ठीक से सोचने लगे। उसके तहत अंडमान में एक हम लोगों ने बहुत बड़ा विशाल सेंटर चलाने की प्रारंभना की है, कंपोजिट रीजनल सेंटर पोर्ट ब्लेयर में। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की जो रीजनल सेंटर है वहाँ अंडमान में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में बहुत बड़ी हमें बिल्डिंग मिली है। उसके साथ अंडमान निकोबार गवर्नमेंट ने हमें काफी बड़ा जमीन देने की, 5 एकड़ जमीन देने की जिक्र की है। बहुत बड़ा बिल्डिंग वहाँ 25 करोड़ के आसपास की लागत में वहाँ बिल्डिंग बन रही है। 20 प्रोफेशनल्स हमें मिले हुए हैं। पर ये चीज अगर अंडमान गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, ये तीनों के साथ भी हमारी कॉन्वर्जेंस हो गई है। बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का तो इतना कॉन्वर्जेंस हुआ है कि वहाँ 280 ने कितने स्कूल है, तो सारे स्कूलों में विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पहली बार के लिए टीचर्स एंड क्लास 1 से लेके क्लास 12 के बच्चों के लिए डिसेबिलिटी एम्पैथी डेवलपमेंट प्रोग्राम अगले महीने से। तो आई एम वेरी श्योर छोटा आइलैंड होने के कारण, छोटे छोटे आइलैंड होने के कारण एक अलग सा मॉडल इवॉल्व होगा अंडमान एंड निकोबार में नेक्स्ट 3 to 5 years. Great. I know we are getting lots of questions from Rajasthan, from different parts of country. Definitely we will take everyone's question. We welcome your questions, we welcome your suggestions. You put it into the chat box. I'll go into the last segment of this Mashwara's session today. Dr. Himanshu Das sir, in your takeaway message, please tell us what matters for quality of life of a person with disabilities, especially during this coronavirus situation. Dr. Himanshu Das,
महाशय आप अपने संदेश में कृपया हमें ये बताएं कि दिव्यांग जनों के जीवन की गुणवत्ता के लिए क्या मायने रखता है, विशेष रूप से ये कोरोना वायरस की स्थिति के दौरान क्या है? थ्योरेटिकली बहुत लंबी कहानी है ये। प्रैक्टिकली आपकी मेरी जीवन का क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्विसेज एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। अगर ऐसा होता तो मेरे बगल वाली, मैं असम का घर वाला हूं, मेरे बगल का स्टेट है, बगल का कंट्री है भूटान। भूटान का क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम लोग भूटान को आज से 30-40 साल पहले भूटान को छेड़ते थे, ये बोल के कि जंगल है, क्या है, ये है, वो है करके। बल्कि भूटानीस लोग देखने के लिए हम लोग बचपन में मार्केट में जाते थे सैटरडे की, भूटान के लोग आएंगे और देखेंगे इस तरीके का दिखता है, वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, ऐसा मजाक उड़ाते थे। इन 30-40 ईयर्स टाइम आप अगर WHO के ग्लोबल मैनेजमेंट देखेंगे, एजुकेशन के वो टॉप 5 में पहुंच चुके हैं, हेल्थ के टॉप 5 में है वो, हैप्पीनेस इंडेक्स में कई सालों से, एक दशक से भूटान इज एट द टॉप 5 ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये सारे इंडेक्सों में जो है इंडिया काफी हद तक नीचे है, जो मैं बताना नहीं चाहूंगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसका इनवर्सली एक तो बहुत बड़ा एलिमेंट हमने देखा है इन डिफरेंट स्टडीज, इट इज अबाउट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, कि आपको जिंदगी खुश रहना है और हैप्पी रहना है। और खुशी और सेटिस्फैक्शन जो है ये आपका अमीरी गरीबी और ये आपका मेटेरियलिस्टिक दुनिया से डिपेंड नहीं करता, ये पहला कॉन्सेप्ट है। सेकंड जो है, ये आप कोपिंग के टाइम में, जो कोई भी जब आपदा विपदा आपने और मेरे में आता है, तो उसमें हम किस तरीके से कोपिंग करते हैं और रेस्पॉन्स किस तरीके से करते हैं। अभी मेरे दोस्तों को मैंने 3 क्लास में बांटा, एक बेरोजगार पार्टी, एक किसी रोजगार में थोड़ी हार्म आई है, थोड़ी हानि आई है कोविड के वजह से, और एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोविड के, क्योंकि उनको सैलरी मिलेगा। तो तीनों के साथ जब वार्तालाप करता हूँ, भाई क्या हाल है, तो 50% तीनों ग्रुप में 50% पॉपुलेशन का जवाब ये आएगा, और भाई जिंदगी क्या नरक बन गया है, ये है वो है, सारा दुख भरी कहानी सुनाएगा। और 50% पॉपुलेशन ऐसे मिलेंगे, अरे भाई मजे आ गए, अब तो भाई सिनेमा चल रही है, खाना चल रहे हैं, मजे लूट रहे हैं। तीनों के ही बिल्कुल भी अलग अलग है, एक का सैलरी है, एक का बिल्कुल सैलरी नहीं है, और एक का आधा सैलरी है, लेकिन रेस्पॉन्सेस तीनों ग्रुप में जो है 50-50 है। कोई जिंदगी से बहुत ज्यादा खुशी तरीके से कोप अप कर पा रहा है कोविड को, कोई बिल्कुल नाखुश तरीके से कोप अप कर पा रहा है, उसे कोपिंग हो नहीं रही है, दुखी मरा घूम रहा है। तो एक्सट्रीमली अनहैप्पीनेस दिख रही है कुछ ग्रुप में, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस एक ग्रुप दिख रही है, डिस्पाइट द सिचुएशंस एंड द सर्कमस्टेंसेस आर सेम फॉर ऑल। इसके पीछे जब आप कारण देखेंगे, पता लगता है रेसिलियंस मतलब जब आपकी कोई आपदा विपदा आ जाती है, आपके अंदर की एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेन होती है, एक प्रकार का मनोशक्ति होती है, जो आपको किसी भी प्रकार से, किसी भी आपदा विपदा से फाइट करने में आपको मदद करती है, आपको उभरने में मदद करती है। ये रेसिलियंस ट्रेनिंग जो एक चीज है, ये मुझे लगता है हमारी पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स और हमारी दिव्यांग व्यक्ति को हमें आगे जाके जितना जल्दी हो सके हमें रेसिलियंस ट्रेनिंग देनी होगी। और आप लोगों को जानते हुए ये अच्छा होगा, मैं 7 अलग अलग दिव्यांग ग्रुप का, विजुअल इंपेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी, हियरिंग इंपेयरमेंट, सभी ग्रुप का रेसिलियंस ट्रेनिंग के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बहुत जल्द आप लोगों को मॉड्यूल्स मिलने वाला है, किस प्रकार से दिव्यांग जनों में आप ये रेसिलियंस डेवलप कर सके। जब अच्छा रेसिलियंस डेवलप होगा, उनका किसी भी ऐसा आपदा विपदा में उनका कोपिंग अच्छा होगा, और जो कोपिंग अच्छा होगा तो अनहैप्पीनेस की तरफ से वो लोग हैप्पीनेस की तरफ ज्यादा जाएंगे, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ लाइफ बढ़ेगी। और इसके तहत जो है बेसिक नीड्स मीट होने पे ही आप देखेंगे उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर जो है वो बढ़ेंगी। थैंक यू भुवन जी। Oh, great. And Dada, I can take one commitment from you. Can we have the session on resilience training, coping skills पे कुछ हम लोग कोई इस बात पे प्राइमरी कुछ बात तो चर्चा तो रख ही सकते हैं? बिल्कुल करिए, लेकिन भुवन जी मेरा एक सलाह होगा, इसलिए मैं 2-4 दिन में पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम किया, तो इनिशियली वी स्टार्टेड विथ दिस 45 मिनट्स काइंड ऑफ ए सेशन, और क्वेश्चन आंसर के आंसर्स कम थे। बाद में हमने इसको 2 घंटे का सेशन बनाया, और ऑलमोस्ट उसमें से 1 आवर हमने डेडिकेट किया क्वेश्चन आंसर को, और बहुत अच्छा बढ़िया रहा है। इनफैक्ट आप अगर वेबसाइट में देखेंगे, इंटरनेट में आपको मिलेगा, कल का हमारा पार्टिसिपेशन 1200 था, 1200 पार्टिसिपेंट। पहले दिन परसों हमारा पार्टिसिपेंट थे 1135 और 1170। तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वेश्चन आंसर दे पाए, इन्वॉल्व कर पाए। मेरे पास तो 45 मिनट का हम लोग मशवरा का ये
एपिसोड बनाते हैं और ये जाता है 1 घंटा 30 मिनट या सवा घंटा तक पहुंच जाता है. We will see, we will look, but today I can tell you that we had about 248 participation live, and then इसमें आज और लाइव में करीब हमारे पास it's about 1825 के करीब लोग हैं. 1825 लोग लाइव देख रहे हैं. ओके. और फिर फेसबुक पे भी लाइव है, बहुत जगह लाइव है. लोग, the people are there going here and there. They are very much observing our program, and definitely we will take this to increase the time. I would like to tell you, we have shared the link of feedback and certificate in the link box, and this link is open till 60 minutes, so you can send your feedback. Please do not share this link to other. If you don't receive certificate through this link, please share your email ID on mashwara mashwara@manovikas.family. आपकी प्रतिक्रिया और प्रमाण पत्र के लिए हमने लिंक साझा किया हुआ है. यह लिंक 60 मिनट तक खुला रहेगा ताकि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं. दूसरों से लिंक साझा ना करें. यदि आपको यह लिंक के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है तो कृपया अपना ईमेल आईडी हमें मशवरा mashwara@manovikas.family पर साझा करें. सो हम आपके प्रतिक्रिया के लिए हम करते हैं. सो थैंक यू डॉक्टर देसाई सर, इफ यू आर हियर, एंड कैन यू गिव मी द फाइनल रिमार्क्स. डॉक्टर देसाई सर. ओके. सो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा अगला सेशन है, वी ऑल नो that higher education is an important and final stage of formal learning that occurs after secondary education, also called third level of education or tertiary education. And in that discussion, the Indira Gandhi National Open University, IGNOU, provide the access to high quality, innovative and need-based higher education in affordable cost in all segments of the society. We will talk on higher education through IGNOU in the next Mashwara session. Please join Mashwara on Saturday 23rd May at 3 PM. हम सभी जानते हैं कि उच्च शिक्षा हमारी औपचारिक शिक्षा का एक वैकल्पिक और अंतिम चरण है जो माध्यमिक शिक्षा पूरा होने के बाद होता है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय समाज के सभी वर्गों के लिए ऐसी शिक्षा प्रदान करती है, उच्च शिक्षा. तो हम इग्नो के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्या क्या अवसर हो सकते हैं वो 23 मई को मशवरा की श्रृंखला में बात करेंगे. कृपया दोपहर 3 बजे आप सभी पधारने का कष्ट करें. सो थैंक यू वेरी मच. सो थैंक यू सर. हिमांशु सर. धन्यवाद जी, धन्यवाद. I deemed it a great honor to host this 8th episode with you, Himanshu sir. Thank you all. We have helped us in making episode such a resounding success. First of all, my the personal thank you. I would like to thank you, propose heartily thank to a special guest, our Dr. Himanshu Das sir, for gracing today's Mashwara, and thank you for your very interesting, thought-provoking message address. Thank you, sir. Thank you. I would like to thank our distinguished expert, Dr. Ramesh Pandey ji. He is my very good brother, and for making an excellent point of view and making this Mashwara interesting and meaningful. So thank you, Ramesh ji. Thank you. I would like to express our providing profound gratitude to our president, Dr. Nimesh Desai, and some members are here. Our advisors are here. Our chairman, advisory board, Mr. M.M. Vidyarthi is here. J.C. Gupta is here. So volunteers, their presence in the Mashwara is very highly appreciated. I am happy to express my thanks to all staff members who have made this episode grand success. Especially, I can take the mention that the Suraj and Sushil, 2 persons, has made this Mashwara very grand, successful. So finally, wonderful guests and participants who have turned up. Such a great members of Mashwara, not only from the disability sector, but also from the other sector. So thank you so much for active participation. Thank you very much. धन्यवाद. आप सभी को धन्यवाद. मैं सभी को इस मशवरा के एपिसोड में मेजबानी करने के लिए धन्यवाद देता हूं, सम्मान करता हूं. हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु दास सर को हार्दिक धन्यवाद. मैं विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट विशेषज्ञ रमेश पांडे जी का भी आभार व्यक्त करता हूं. उन्होंने एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण दिया है और मशवरा को बहुत काफी इंफॉर्मेटिव बनाया है. मैं अपने अध्यक्ष डॉक्टर निमेश जी देसाई, हमारे सलाहकार सदस्य, स्वयंसेवक
मशवरा में उपस्थित होने के लिए आपका गहरा आभार व्यक्त करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मैं सभी स्टाफ सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, खुशी से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मशवरा की इस कड़ी को शानदार सफलता दिलाई है। अंत में सभी सम्मानीय मेहमान प्रतिभागी जो न केवल इस दिव्यांगता क्षेत्र से हैं बल्कि अन्य क्षेत्र से भी हैं, आप सभी का सक्रिय भागीदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।